लोग सामने से ही पूछ देते थे कि तुम खुशखबरी कब दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि शायद भगवान ही हमारा साथ अभी नहीं दे रहा। घर वाले मेरे बुरे नहीं हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं, पर वो भी जब पूछते थे कि तुमने डॉक्टर को दिखाया, तो ये जो टोन था ना, वो कभी कभी बहुत भारी लगने लगता था। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मैं कभी बाप बन पाऊंगा। हमसे गलती हो रही है या ऊपर वाला ही नहीं चाहता। ऐसा समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है हमारे साथ। In India, around 27.5 million cases are struggling with infertility. Not a rare problem, but a nationwide crisis. Infertility affects 15 to 20% of urban couples and around 10% of rural couples. Male infertility contributes to 40 to 50% of all cases. Yet, social blame overwhelmingly falls on women. These aren't just numbers. These are millions of stories, millions of silences. Infertility rare नहीं है, common है, लेकिन जो rare है वो है सही guidance, सच्चाई और हिम्मत, और ये सिर्फ यहाँ है। सिर्फ फाउंडेशन जो खामोशी को आवाज देती है। मैं जब भी इसको गोद में लेती थी ना, तो यही भगवान से कहती थी, मुझे ये एक अच्छा नागरिक इसको बनाना है। टीचर को मैं कहती थी ना स्कूल में जाके, उन्होंने कहना शरारतें बहुत कहता, मैं कहा काम कराओ। जैसे किताब का 27 पेज है ना, वो कहते 27 पेज पे क्या है, ये इन बिन वो ही टेक्स्ट बुक में बता देता। कहते मैडम क्या पढ़ाएं हम इसको। मैं पूछती थी कि जब इसकी सिलेक्शन हो जाएगी, वो यही कहते थे ये इसकी सिलेक्शन नहीं हुई तो शहर में किसी की भी नहीं होगी। फिजिक्स का पेपर था, 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल इसको नहीं आता था, तो जो इसके सर थे ना, उन्होंने ग्रीन पेन से सॉल्व किया और अपने बेटे को भेज दिया। उसने कर लिया, उसने वो स्लिप इसको दे दी। कहता मैंने नहीं करना, मेरे को आता ही नहीं, मैं क्यों करूँगा। नहीं किया। जब रिजल्ट आया तो वो 3 मार्क्स इसके कम हो गए, 67 आउट ऑफ 70। कहता मैं सारी सही रात मम्मा पढ़ता रहा हूँ, मेरे उतने मार्क्स नहीं आएंगे जितने वो चीटिंग वालों के आ जाएंगे। मैं कोई बात नहीं, चिंता नहीं करते, जो ईमानदारी से काम करता है ना वही आगे आएगा। Being Dr. Sarabjit's older sister has been an amazing experience. He has always been a people and helpful person. I remember the time when he was preparing for his board grade 12 exam. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Now looking back, I realize this has always been in his nature, supporting other people, leaning towards other people. I believe it's not just what he does, it's who he is. ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਰਹੇ। डॉक्टर सरबजीत से मैं पहली बार पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मिली थी। हम दोनों एक ही टाइम में एडमिशन बैच थे। ही वॉज अ स्वीट, सिंपल, ऑनेस्ट एंड अ सिंसियर गाय। So slowly the friendship developed and matured into love. In the final year we thought कि yes, we should get married. We came to Delhi and we were in government jobs, both in different hospitals. फिर after 3-4 years of experience, we decided to start private practice. After doing jobs in various corporate hospitals in Delhi and doing very good in IVF, he wanted to come back to Punjab. Punjab is his soil. The soil was kind of मिट्टी बुला रही थी, तो we decided to shift back. He is a person who
things ahead of his time. After doing a lot of work, he thought कि और क्या वो कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, which made him go as far as West Africa to establish the first IVF lab there. जहाँ पे IVF होता नहीं था, वहाँ पे IVF सिखाया वहाँ के लोगों को, ताकि वहाँ के लोगों को अफोर्डेबल रेट्स में अपने ही कंट्री में IVF मिल जाए। IVF में डॉक्टर सौरभ ने ऐसा कोई सेंटर नहीं जिसके साथ एसोसिएट होकर काम नहीं किया। इतने सारे लोगों को IVF की स्किल इम्पार्ट की, उनको इंडिपेंडेंट बनाया, उनको नए नए IVF सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने में हेल्प की। माई जर्नी विद डॉक्टर सरबजीत इज़ क्वाइट गुड, सैटिस्फाइंग, एंड ही हैज़ लॉट ऑफ क्वालिटीज़। ही स्टिल दैट सिंपल, सिंसियर, ऑनेस्ट गाय आई मैरिड, एंड आई एम प्राउड टू बी हिज वाइफ। My dad for me is a superhero. He's like my role model because जब मैं छोटी होती थी I always was upset with पापा कि पापा आप हमेशा काम पे जाते हो, आप फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। And now I realize how hard it is for him to balance all these things, but he as a dad is very nice. I am really proud that my dad is a doctor and he gives lives to people. मैं मानता हूँ कि हमारे प्रोफेशन में जो पेशेंट से बढ़ के कोई भी टीचर नहीं है। पेशेंट ही हमें सिखाते हैं, चाहे वो हमारी स्किल है, चाहे वो हमारी काउंसलिंग है, और पेशेंट से ही बहुत बार हमें समाज में क्या चल रहा है वो भी पता चलता है। मुझे याद है एक बार OPD के अंदर में पेशेंट जो है वो एंटर किया, ठीक है, वाइफ थी, तो उसने दुपट्टे से अपना जो चेहरा है वो ढका हुआ था। तो कई बार हमें लगता है हमारी OPD में ये चीज़ें कॉमन हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, तो कई बार वो एम्बेरस फील करती हैं इस चीज़ों के ऊपर में। तो हमें लगा कि शायद, या कई बार वो पोल्यूशन की वजह से, या तो मुझे लगा कि शायद यही कोई चीज़ होगी। तो वो जैसे बैठी तो स्टाफ ने फ़ाइल निकाली, तो पुराना पेशेंट ही था मेरा जो चल रहा था। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, आपने मुंह ढका हुआ है? तो नहीं मैंने ऐसे ही है। तो मैंने स्कैन इशारा किया कि स्कैन की तरफ चलते हैं। तो स्कैनिंग के लिए लेटे ही तो मैं स्कैन कर रहा था, तो मैंने गौर किया कि उसके जो चेहरे जो है आँखों के नीचे थोड़ी सी सोजिश थी, तो वो नेचुरल नहीं थी। तो मैंने कहा कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं दुपट्टा, तो उसने थोड़ा सा घबराते हुए अपना दुपट्टा नीचे किया, तो उसके चेहरे के ऊपर में नील पड़े हुए थे आँखों के आसपास में से। सो मैंने पूछा कि ये ऐसा कैसे हुआ? नहीं मैं निकल रही थी गाड़ी में, ऑटो में, जो भी उसने, तो मैं गिर गई, तो मेरे उसके निशान पड़े हुए हैं। तो क्योंकि डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ऑटो से गिरने पे कैसे निशान पड़ते हैं, और ये निशान मार पिटाई के निशान थे। तो उसने बताया कि मुझे घर के अंदर में इस तरह से मारपीट हुई है कल मेरे। हमने समझाया, हमने कहा कि जब भी आपके नेक्स्ट साथ में आएंगे, ठीक है, हस्बैंड उस टाइम पे वो नहीं आया था, तो हम उसको भी काउंसिल करेंगे। ट्रीटमेंट चलती रही। 14 डेज़ के बाद में जब वो आई, तो मैंने शायद पहली बार उसको इस पूरी ट्रीटमेंट में खुश देखा था, क्योंकि जब उसको बाहर स्टाफ ने बताया कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और आप प्रेग्नेंट हैं, बहुत खुश थी। और बताते बताते मुझे भी थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ कि ऐसे पेशेंट जो हैं जिनको इस तरह से प्रेगनेंसी आती है। तो मैंने कहा अब आपके क्या प्लान हैं? तो वो कहीं शायद उत्तर प्रदेश से आई हुई थी, तो कह रही है कि सर मैं आपका एक इनिशियल स्कैन जो है वो करवाऊंगी और उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबली मैं वापस जाऊंगी। तो मैंने कहा क्या है? कह रही कि जी मेरी बात नहीं बन रही है मेरी इस फैमिली के साथ में, तो मैं एक बार बच्चे लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समाज के मुंह के ऊपर ये बताना चाहती हूँ कि मैं भांज नहीं हूँ। तो मेरा जो बच्चे हैं वो मेरा प्रूफ हैं, और इस चीज़ के लिए कि मैं अब वो नहीं हूँ जो मुझे ये संसार, ये समाज समझता था। तो जब आपके सामने कोई ऐसी बातें करता है तो आपको, आपका जो दृष्टिकोण है, ठीक है, आपकी ट्रीटमेंट के लिए, आपके समाज के लिए, तो वो सामने आता है कि हम आज भी अगर 2026 की चाँद की, मंगल ग्रह की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ समाज हमारा अभी भी
इसी जगह के ऊपर रुका हुआ है। सक्सेस रेट के बहुत मायने निकलेंगे। सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि सक्सेस का मतलब होता है आईवीएफ के अंदर में कि उनको प्रेगनेंसी देना और उस प्रेगनेंसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करके पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में उनका साथी बनना और उनको उस मुकाम तक पहुंचाना, यानी कि एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करके उनके साथ भेजना। तो सबसे बड़ा सक्सेस रेट जो है वो है आपका कैरी होम बेबी रेट, जिसको हम लोग कहते हैं कि कितने कपल्स को हम लोग बच्चा दे पाए। तो बच्चा जब भी घर के अंदर में जाएगा तो उसके साथ में एक आईवीएफ का बहुत बड़ा मैसेज आता है। वो ये है कि आईवीएफ एक सच्ची ट्रीटमेंट है और आईवीएफ आपको प्रेग्नेंट कर सकती है। और एक सामाजिक मैसेज भी जाता है कि वो कपल्स के लिए जो आसपास उनको देखते हैं, सुनते हैं, तो उनके अंदर भी एक आशा की जो किरण है वो जागती है कि इस ट्रीटमेंट के थ्रू हम भी अपने घर में खुशियां ला सकते हैं, प्रेगनेंसी ला सकते हैं। तो मेरे लिए सक्सेस रेट का ये मायना निकलता है। IVF, 3 अक्षर जिन्होंने लाखों जिंदगियां बदली हैं। लेकिन ये शब्द सुनते ही कुछ लोग उम्मीद देखते हैं तो कुछ लोग डर, क्योंकि सच किसी ने बताया ही नहीं। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, प्योर साइंस है ये। और सीधी बात कि अगर नेचुरल प्रोसेस में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हम एग को बाहर निकाल कर फीमेल की बॉडी से हस्बैंड का स्पर्म लेकर बाहर आईवीएफ इक्सी से एम्ब्रियो तैयार करते हैं और उस एम्ब्रियो को डेवलप करके फीमेल के अंदर रखते हैं। आईवीएफ एक ज़रिया है जो आपको प्रेगनेंसी की ऑप्शन देता है, एक बेहतर ऑप्शन, और आपको माँ बाप बनने का एक क्विक ज़रिया। ये मिथ है कि आईवीएफ से हुआ बच्चा जो है वो आर्टिफिशियल होता है। ऐसा नहीं होता, बल्कि आईवीएफ के अंदर में माँ के ही अंडे और फादर के ही स्पर्म को इस्तेमाल करके बाहर आईवीएफ टेक्निक से या फिर इक्सी की टेक्निक से अंडे और शुक्राणु को मिलाकर भ्रूण एम्ब्रियो तैयार किया जाता है। फिर उस एम्ब्रियो को डेवलप करके फीमेल के यूट्रस के अंदर रखा जाता है और अंदर रखने के बाद प्रेगनेंसी आने के बाद फिर वो प्रेगनेंसी नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही आगे चलती है। तो ये कहना कि ये एक आर्टिफिशियल बच्चा है, इसके अंदर में कोई प्लास्टिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आज के दौर में मैं कहूँगा कि आईवीएफ रादर एक पेनलेस प्रोसीजर बनता जा रहा है। सबसे पहले कि जब हम लोग इंजेक्शंस इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एग बनाने के लिए हो या फिर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए इंजेक्शंस हो, तो वो इंजेक्शंस बहुत ही पतली नीडल के सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि खुद से लगाने वाले इंजेक्शंस होते हैं। और वो आजकल एक्वा बेस यानी कि बिल्कुल ही पेनलेस इंजेक्शंस आ चुके हैं। और दूसरी चीज़ है जहाँ पे पेन महसूस कर सकता है एक कपल, वो है कि जब हम फीमेल के एग्स निकालते हैं, और ये जो एग निकालने वाली प्रोसेस है ये जनरली अंडर एनेस्थीसिया होती है, बेहोशी में होती है। सो पेन का बहुत सारा पार्ट जो है वो बेहोशी की ये जो प्रोसेस है ये कवर कर लेती है। तो अगर आप ये कहेंगी कि आईवीएफ एक पेनफुल प्रोसेस है तो मैं इस बात का बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं, बल्कि इस कॉम्पिटिटिव दौर के अंदर में जो आईवीएफ है उसके अगर सक्सेस रेट बेहतर हुए हैं तो उसके साथ में एक और चीज़ है, वो है कि इसके दाम भी कम हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, हर वर्ग का हर आदमी जो है इस ट्रीटमेंट के ज़रिए माँ बाप बनने का सपना पूरा कर सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारी साइंस की अगर बात करें तो फर्टिलिटी प्रॉब्लम के अंदर में आज के दौर में मेल और फीमेल इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि 50% केसेस के अंदर में मेल डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर के ऊपर में
जिम्मेदार होता है। और दूसरी चीज़ अगर ये कहें कि इसमें सिर्फ लड़के होते हैं या ज़्यादा लड़के होते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जो सिलेक्शन होती है वो 50-50% ही IVF में होती है, जिसका मतलब है कि जो एम्ब्रियो हम लोग फीमेल के अंदर रखते हैं, अंदर अगर वो जुड़ते हैं तो उसके अंदर में 50% चांसेस होते हैं कि वो फीमेल होगी और 50% चांसेस होते हैं मेल होगा। IVF बहुत सिंपल प्रोसेस बन चुका है आजकल के टाइम के अंदर में। अगर हम पूरी प्रोसेस की बात करें तो IVF 3 फेजेस में होता है। IVF की प्रोसेस फीमेल के पीरियड्स के ऊपर स्टार्ट होती है। तो जनरली हम लोग कपल को, हस्बैंड और वाइफ को, फीमेल के पीरियड्स के सेकंड डे पे बुलाते हैं। अल्ट्रासाउंड से फीमेल को असेस किया जाता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, हस्बैंड का सीमन का असेसमेंट होता है, वीरज का असेसमेंट होता है, और फिर उसके बाद में इंजेक्शन शुरू होते हैं जो फीमेल को रोज़ लगाने होते हैं। ये सिंपल इंजेक्शंस होते हैं, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। फीमेल ये इंजेक्शंस खुद ही लगा पाती होती है। इन इंजेक्शंस का पर्पस होता है कि उनकी ओवरीज में से ज़्यादा एग बनाना, जिसका नंबर होता है आमतौर पे हमारी कोशिश रहती है 8 से लेके 12 तक। तो फीमेल रोज़ इंजेक्शंस लगाएगी, उनसे उनके एग तैयार होंगे। पीरियड्स के सेकंड डे पे इंजेक्शन शुरू होते हैं, फिर पीरियड के 6th डे, 8th डे, 10th डे बुलाकर हम लोग जनरली असेस करते हैं अल्ट्रासाउंड से कि उनके एग्स जो हैं फीमेल के वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो हमने अपनी डोज को प्लस माइनस करना होता है, इंजेक्शंस को ऐड ऑन करना होता है। 10 से लेके 14 दिन तक इंजेक्शन देने के बाद फीमेल के जो एग हैं वो रेडी हो जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलेशन फेज़, यानी कि एग मेकिंग का, एग बनाने का फेज़। फिर आता है सेकंड फेज़, जिसमें हम लोग एग रिट्रीवल करते हैं, यानी कि ऊस साइट पिकअप, OPU या OCR जिसको बोलते हैं, उसको करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये लेबोरेटरी में, उसके साथ में OT होता है, ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पे करते हैं। लेकिन ऑपरेशन के नाम से घबराना नहीं है, क्योंकि IVF के अंदर में ये जो एग रिट्रीवल का प्रोसेस होता है ये थ्रू अल्ट्रासाउंड होता है, जिसके अंदर में 10 से लेके 30 मिनट तक फीमेल को बेहोश एनेस्थेटाइज किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड से ये जो एग हैं जो उसके बनाए थे हमने फर्स्ट फेज़ में, वो एक नीडल डालकर हम उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग उसकी बॉडी से एग बाहर निकालते हैं, उसी टाइम पे हम हस्बैंड का सीमन लेते हैं, वीरज लेते हैं, और उसमें से बढ़िया स्पर्म्स जो हैं पहले वो छांट लेते हैं। उसके तरीके होते हैं। फिर जो अच्छे स्पर्म हैं और जो वाइफ के एग हैं उसको हम लोग या तो IVF या फिर ICSI, 2 टेक्निक से हम लोग एग और स्पर्म को मिलाकर एम्ब्रियो बनाते हैं। IVF पुरानी और एक कन्वेंशनल टेक्निक है, जिसमें हम लोग थोड़ा नेचर का इस्तेमाल करते हैं और निकाले हुए एग्स के आसपास फिल्टर किए हुए स्पर्म्स को छोड़ देते हैं, ताकि ओवरनाइट इंक्यूबेशन में एम्ब्रियो बने, भ्रूण बने। ICSI थोड़ा एक स्टेप और फर्दर हो जाता है, जिसमें हम लोग एक मशीन यूज़ करते हैं जिसको माइक्रो मैनिपुलेटर कहा जाता है। तो एक हिसाब से वो रोबोट टाइप की मशीन है जिसके 2 बाजू हैं। तो उससे हम लोग एग को पकड़ते हैं, स्पर्म को पकड़ते हैं और स्पर्म को एग में मिलाकर एम्ब्रियो बना लेते हैं। तो ये एम्ब्रियो बनाने की टेक्निक्स होती हैं। तो इन एम्ब्रियोज को फिर हम लोग इंक्यूबेट करके डेवलप करते हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 4th डे, 5th डे। तो 5वां दिन जो है उसको कहते हैं हम लोग ब्लास्टोसिस्ट, डे 5 का एम्ब्रियो। तो सेकंड फेज़ जो होता है वो होता है आपके एग निकाल के एग को मिला के एम्ब्रियो बनाने का फेज़, जो हमारी लेबोरेटरी और ऑपरेशन थिएटर के अंदर में होता है। आजकल IVF ICSI तो सब कर रहे हैं, बट हमारे पास उनसे भी एडवांस टेक्निक इन हाउस ही अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पर्म सिलेक्शन में मैक्स, ज़ायमोट और माइक्रोफ्लूडिक्स। इनके रिजल्ट्स बेटर माने गए हैं मेडिकल साइंस में, इसीलिए हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। जिन पेशेंट्स की प्रीवियस हिस्ट्री अबॉर्शन और मिसकैरेजेस की होती है, उनको सपोर्ट के लिए PGD जो होता है, प्री जेनेटिक डायग्नोसिस, उनको भी फॉलो करते हैं, जो कि हमारे पास इन हाउस अवेलेबल है।
फिर उसके बाद में थर्ड फेज़ आता है जिसके अंदर में हम फीमेल को बुलाकर इन एम्ब्रियोज़ को उसके अंदर रखते हैं। इसको कहते हैं हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस। ये प्रोसेस आम तौर पे बिना एनेस्थीसिया के होता है, सिंपल प्रोसेस है। अल्ट्रासाउंड करके हम लोग 1 या 2 जो बेस्ट डे 5 के ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो होते हैं वो एक पतली सी ट्यूब में हम फीमेल के यूट्रस के अंदर रख देते हैं। तो एम्ब्रियोज़ रखवा के फिर 1-2 घंटा वो रेस्ट करती है और उसके बाद वो चली जाती है। और उसके साथ फिर हम कुछ एडिशनल मेडिसिन्स देते हैं। उन मेडिसिन्स का पर्पस होता है कि जो एम्ब्रियोज़ अंदर रखे हैं वो बेहतर से इम्प्लांट हों। और 14 डेज़ के बाद फिर हम फीमेल को बुलाकर ब्लड टेस्ट से या फिर यूरिन टेस्ट से चेक करते हैं कि ये जो एम्ब्रियोज़ हमने 14 दिन पहले रखे थे वो अंदर जुड़े यानी कि इम्प्लांट हुए या नहीं, यानी कि फ़ीमेल प्रेग्नेंट हुई या नहीं। सो मॉडर्न एरा के अंदर में प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय इसके के फेलियर होने के चांसेस। IVF के सक्सेस रेट्स 100% नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, हम साइंस में इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम कभी ना कभी ये 100% मार्क अचीव कर सकें। IVF के अंदर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उसके बाद भी आपको कुछ प्रेगनेंसी के एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपको झेलनी पड़ती हैं। और IVF की प्रेगनेंसी एक स्पेशल प्रेगनेंसी और हमेशा एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है। तो यहाँ पे वो सब मेजर ब्लॉक्स जो एक आम फीमेल को प्रेगनेंसी के अंदर में मुश्किलें पैदा करते हैं वो IVF के अंदर भी आपको प्रेग्नेंट होने के बाद उन ब्लॉक्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, जिसके अंदर मिसकैरेजेस के रेट्स, जिसके अंदर में एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि गलत जगह पे प्रेगनेंसी होने का डर, और उसके बाद बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ, और उसके बाद बच्चे का वक्त के ऊपर डिलीवरी होना, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी तरह ब्लड प्रेशर के रिलेटेड, ग्रोथ के रिलेटेड, प्लेसेंटा के रिलेटेड और डॉपलर्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होना, इन सब खतरों से आपको निकलना पड़ता है। और फिर 9 महीने के बाद वो समय आता है जिस चीज़ के लिए आपने और हमने मिलके मेहनत करी है, यानी कि हमारा कैरी होम बेबी रेट, यानी कि आपके हाथ में वो खुशी देना जिसके लिए हमने पिछले 1 साल से मेहनत करी। IVF प्रेगनेंसी एक स्पेशल प्रेगनेंसी मानी जाती है और एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है। इसके साथ में आपको सामाजिक प्रेशर जो आपकी एंजाइटी का लेवल और बढ़ाता है, आपका हो सकता है फैमिली प्रेशर जो आपका स्ट्रेस का लेवल और बढ़ाता है। इन चीज़ों के मद्देनज़र भी आपकी प्रॉपर डी स्ट्रेसिंग एक्सरसाइजेस, कुछ रेमेडीज़ और शायद कभी कभार मेडिसिन्स भी ज़रूरी पड़ सकती होती हैं। तो आपको ये समझना है कि जो एंजाइटी लेवल और सामाजिक प्रेशर है वो आपको नहीं लेना है, और इसको आपने अलग अलग तरीक़ों से, चाहे वो योगा है, मेडिटेशन है, आपको मनपसंद चीज़ें जैसे कुकिंग है, म्यूज़िक है, इन चीज़ों से आपको अपनी प्रेगनेंसी को आगे बेहतर तरीके से कैरी करना है। मैं आपको डराऊंगा नहीं और ना ही आपको कोई झूठी उम्मीद दूंगा। IVF एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो आपको क्विकली जल्द प्रेगनेंसी दे सकता है, लेकिन IVF कोई जादू नहीं है, IVF कोई मैजिक वैंड नहीं है। इसके अंदर एक सफलता दर है, इसके साथ में जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि फ़ीमेल की एज बढ़ने के साथ सफलता दर का कम होना, जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं उसके साथ में सफलता दर का कम होना। मेरा जो काम है वो है आपको चॉइसेस देना, कैफेटेरिया चॉइसेस, ताकि आप अपना निर्णय अच्छे से ले सकें, आपको पूरी ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन देना और आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपके साथ सफ़र करना। और ये सारी चीज़ें हम आपको एक ईमानदार, ट्रांसपेरेंट रूप से सरफ फाउंडेशन में देते हैं। IVF का मेडिकल पार्ट समझ आ जाता है, टेस्ट, इंजेक्शंस, प्रोसीजर्स, रिपोर्ट्स, लेकिन जो नहीं दिखता वो है अंदर से टूटना, रात को नींद न आना, हर महीने का इंतजार,
हर नेगेटिव रिजल्ट देखकर कम होती आस, ये किसी भी किताब में नहीं लिखा होता। देखिए, फैमिली प्रेशर होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं आपको जल्दी माँ बाप बनना। इसके साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ जो आती है वो है कंपैरिजन, जो मैं ये समझता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि उस कज़न के बच्चा हो गया या सामने पड़ोस में बच्चा हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं ये उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालती हैं, स्ट्रेस डालती हैं, एंजाइटी क्रिएट करती हैं और खुलने की बजाय वो और सीमित होना शुरू कर देते हैं। कुछ तो इस हद तक सीमित हो जाते हैं कि वो सोशल बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं। वो समाज का बाइकआउट करेंगे, वो गैदरिंग्स अवॉइड करेंगे, पार्टीज़ अवॉइड करेंगे, फैमिली फंक्शन अवॉइड करेंगे, तो अपने आप में खुदते चले जाते हैं। ऐसे कपल्स को बाहर निकालना और भी मुश्किल हो जाता है, और वो जब IVF के लिए, काउंसलिंग के लिए आते हैं तो उनको ये चीज़ों को जब समझाना है तो वो मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रेशर क्रिएट होता है ये IVF से भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप उनको सपोर्ट दो, उनके साथ खड़े रहो, लेकिन उनको कंपेयर मत करो और उनको साथ में लेके एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लो। हर जर्नी का एक एंड होता है, IVF की भी होती है। रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन जो बात कोई नहीं करता वो ये है कि रिजल्ट के बाद आप कैसे जीते हैं, क्योंकि जिंदगी रिजल्ट से आगे भी होती है। IVF एक ऑप्शन है, सिर्फ एक ऑप्शन। ये मिरेकल नहीं है, गारंटी नहीं है। कुछ के लिए ये लाइफ चेंजिंग होता है पॉजिटिवली, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रिजल्ट। सोसाइटी का अप्रूवल नहीं मिलेगा, लेकिन खुद को अप्रूव करना होगा। IVF करना है ज़रूर करें, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ। ये जर्नी आपकी है, हम इस जर्नी में आपके साथ हैं। ये पेन आपकी है, हम उस पेन को कम करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आने वाली खुशी आपकी है, हम इस खुशी को आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। आपको क्या करना है, आपको और आपके पार्टनर को बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ IVF की प्रोसेस में एंटर होना है। समाज, सोसाइटी क्या सोचती है ये उसकी अपनी परेशानी है। आप और आपके पार्टनर अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ IVF करवाएंगे तो हम उस मुकाम तक ज़रूर पहुंचेंगे जिस चीज़ के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं।